जब वो अपनी फर्स्ट अर्निंग करता है तो ही और शी शुड ऑलवेज गिव लाइक टू नियर और डियर वंस, राइट? Yeah. तो मैंने अपने फादर को गिफ्ट किया था, इट वाज अ स्मार्टफोन, एंड मैंने मम्मा को भी कुछ गिफ्ट किया था। Okay. तो ये दो गिफ्ट मैंने दिए थे। So that was a proud moment. या Hey, I'm Saurabh Keshav, brings you to one of the most unscripted stories of entrepreneurs and their journeys. So, if you are visiting the channel for the first time, make sure you hit the subscribe button and press the bell icon. Hi Mayank, and hi to everyone. Mayank is my batchmate. We are pursuing BTech from same college, NIT Uttarakhand. Though we are pursuing BTech from different branches, but we have worked together on different projects. So the main purpose of him bringing to the podcast is that he is a person whom I have seen working with dedication and passion, and he did some side hustle during the BTech and has earned 1,50,000. So I want people to know that it is possible, that whether you are doing some course or doing something in life, there is always time to do some side hustle and generate some financial success for yourself. So I want people to know the tips, what can be the mindset and how you could achieve it. So bro, you did side hustle during the BTech when the BTech was going on. So how it started and what were the thoughts that made you start looking for some side hustle? How the journey Oh, started? definitely. I will explain. So, first of all, thank you for this warm welcome. Okay. And how is your family going right now? How all are doing? Actually, we are in this lockdown situation. We are sitting at home only. So Okay. just working on some work from home projects. Okay. Great. So, uh, before telling about my journey, मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहता हूँ. Little introduction. So basically, my name is Mayank Gupta, as Saurav introduced me here, and right now I'm pursuing my BTech, and it is like last year is going on, last semester is going on, and I'm doing my college from NIT Uttarakhand, same of Saurav. And with my studies I did a lot of things for learning new skills, and for gaining experience of working in college life. And that journey started like just after the second sem, and it was Saurav only who introduced me to the some platform like network marketing. And उसने मुझे बताया और मैंने फिर उस चीज को समझा और कंटिन्यू किया, और दैट वाज ओनली द फर्स्ट थिंग आई डिड इन माय कॉलेज लाइफ. तो नेटवर्क मार्केटिंग किया फर्स्ट ईयर में, और बहुत अप्स एंड डाउन आए. सौरभ नो दैट वेरी वेल. हम लोग we work बहुत मेहनत together. करते थे, पूरे दिन मेहनत करते थे, लाइक आफ्टर द कॉलेज क्लासेस टिल इवनिंग. Yeah. और हम बाहर मीटिंग्स करते थे जो एज यूजुअल करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में. और आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क टिल आई थिंक अप्रॉक्स 5 to 6 months, Yeah. आफ्टर दैट वी गिव अप. हम लोगों ने गिव अप कर दिया. और देयर आर लॉट ऑफ रीजन ऑफ गिव अप करने के बहुत सारे रीजन थे. एंड उसके बाद हुआ क्या, हमारा कॉलेज शिफ्ट हो गया in the third or fourth semester. I Yeah. Third, fourth semester. हमारा कॉलेज शिफ्ट हो गया, कैंपस शिफ्ट हो गया फ्रॉम श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से जयपुर राजस्थान, MNIT जयपुर. Yeah. एंड आफ्टर दैट वो जर्नी हमारी ऑफ कोर्स छूटनी थी, लीव होनी थी, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक अ टीम गेम. उसमें टीम बनानी होती है, और वो हमारी कुछ टीम बनी थी इनिशियली, और लीव वहां पे छूट गई श्रीनगर गढ़वाल में. तो अब कुछ नहीं बचा था करने को. फिर हमने लाइक कॉलेज में बहुत सारे स्टार्टअप ट्राई किए सौरभ ने, उसमें मैंने वर्क किया थोड़ा, और फिर छोड़ा भी बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा था.
हम्म और सडनली इन 2020 जबकि मेरा 6 सेमेस्टर था, 5th या 6 सेमेस्टर था, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली फिर से थ्रू इंस्टाग्राम, और वो मेरे लिए अनफॉर्चुनेट थी एकदम, हाँ बिकॉज मैंने उससे पहले ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देखी नहीं थी। और हुआ ये था कि इंस्टाग्राम पे किसी पर्सन ने एड रन कर रखा था, और उस एड पे मैंने क्लिक किया, और आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट एड जिस पे कि लिखा था कि हाउ टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम, और मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम जो हम कैजुअली यूज करते हैं अभी कॉलेज टाइम में, फोटोज देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, उससे पैसा भी कमाया जा सकता है। इट वॉज वेरी न्यू थिंग, और मैं बहुत क्यूरियस था टू नो अबाउट द वेरियस अर्निंग मेथड्स एट दैट टाइम इन माई कॉलेज लाइफ, इन माई फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर। तो मैंने स्वाइप अप किया, और मैं व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हुआ, उस पर्सन के व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हुआ, और फिर उसने मुझसे चैट किया, और फिर उसने मुझे एक सेमिनार में बुलाया, लाइक जयपुर में। और जब मैं गया और सडनली मुझे पता लगा कि इट वाज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, बट उसको देखने के बाद मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया। लाइक एक पर्सन होता है वो इरिटेट हो जाता है कि अरे फिर से वही बता दिया मेरे को, बट आई टुक दैट एज अ पॉजिटिव वे, बिकॉज क्योंकि जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की थी और जिससे मैं इंट्रोड्यूस हुआ था, वो एक डिफरेंट वे था करने का, जिसमें कि हार्डवर्क बहुत ज्यादा था, स्ट्रगल बहुत ज्यादा था। और जो अभी मैंने देखा था रिसेंट ये सेमिनार अटेंड करके, उससे मुझे पता लगा कि देयर लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स वी कैन डू इन एनी वर्क। तो उस क्रिएटिविटी के साथ ये वर्क हो रहा था, बहुत कम हार्डवर्क था इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वन। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, और उसके बाद आफ्टर 1 or 2 week I know the date exactly, it was I think 21st January, जब मुझे एक और एड दिखा फिर से, और वो जो एड था वो था एफिलिएट मार्केटिंग का, और वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे दिखा था। तो मैं एक नई इंडस्ट्री से और इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि एफिलिएट मार्केटिंग की थी। तो मुझे और चीजें एक्सप्लोर हुई, मुझे और कुछ समझ में आया। देन at that day I took finally decision to work with affiliate marketing company, और उस टाइम वो एक फॉरेन कंपनी थी, यूएसए बेस्ड कंपनी थी, जो कि इंडिया में रन हो रही थी। और बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज अ जस्ट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग, मींस इट इज जस्ट अ बिजनेस ऑफ डूइंग मार्केटिंग और प्रमोशन और डूइंग सेल्स, बट डिफरेंट इन द वे ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो बेसिकली मुझे प्रोडक्ट प्रमोट करने थे कंपनी के ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आफ्टर दैट उन जब प्रोडक्ट की सेल होती तो कंपनी मुझे कमीशन देती कुछ परसेंटेज, एंड दैट वुड बी वरी फ्रॉम 10% टू 90% ऑल्सो। और मुझे उस केस में जो कमीशन मिल रहा था वो 90% मिल रहा था इन दैट यूएसए बेस्ड कंपनी। और उसके बाद मैंने उसे कंटिन्यू रखा फरवरी टिल फेब टू मई 2020। और फाइनली 2020 में मुझे एक और बेस्ट कंपनी मिली जो कि इंडिया की थी, और उसमें बेस्ट ये था बिकॉज दैट कंपनी इज प्रोवाइडिंग सो मच ऑफ लर्निंग टू देयर ऑडियंस, टू देयर कस्टमर। तो फाइनली मैंने स्विच किया फ्रॉम दैट कंपनी टू दिस इंडियन कंपनी, एंड द नेम वाज बिज गुरुकुल। एंड राइट नाउ उसको 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, एंड इट इज गोइंग ग्रेट। और मैंने ज्वाइन किया उसको अप्रॉक्स जून में, और मुझे पता पहले चल चुका था बट मैंने लेट ज्वाइन किया ड्यू टू सम रीजन। और फाइनली मैंने उसको टाइम दिया पर डे 2 hours to 3 hours, बिकॉज मेरी स्टडी भी चल रही थी। ओके और उसके साथ में और भी साइड हसल्स कर रहा था, तो मैंने उसको टाइम दिया एफिलिएट मार्केटिंग को विद बिज गुरुकुल, एंड आई अर्न अप्रॉक्स 1,50,000 till now. So this that my journey started, or now it's going on. Okay, man. So you shifted, आप shift करे from an international company to a Biz Gurukul. Indian.
हाँ, इंडियन Yeah. कंपनी. सो क्या रीजन था, मतलब हाउ अ पर्सन कैन चूज टू शिफ्ट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी? उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो व्हाट कैन बी द बेसिस? ओके ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को भी पर्सन को जो भी एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है, करना चाहता है, तो उसे कुछ पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे. फर्स्ट पैरामीटर वुड बी द प्रोडक्ट ओके. जो कि हमें प्रमोट करना है, राइट? तो अगर वो प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यूएबल है, गुड, वेरी गुड. उसके बाद आपके कस्टमर्स के लिए या फिर जिसको भी आप प्रमोट करोगे, जिसको भी आप सेल करोगे, उसके लिए वैल्यूएबल है, देन ओनली यू शुड प्रमोट दैट प्रोडक्ट ओके. फॉर लॉन्ग. एंड सेकंड थिंग इज, आपको ट्रेनिंग्स क्या मिल रही है. आपको जो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं प्रमोशन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, और सो एंड सो किसी भी चीज के लिए, फॉर डूइंग दैट वर्क सक्सेसफुली, उस वो आपके करियर में कितना हेल्प कर रही है. तो जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, क्या वो आपको सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है टू ग्रो इन योर करियर, राइट? एंड थर्ड थिंग इज कमीशन. आपको कमीशन कितना मिल रहा है. तो इन सब पैरामीटर को एनालिसिस करने के बाद आप किसी कंपनी के साथ वर्क कर सकते हो. तो सेम मैंने जब स्टार्ट किया था विद इंटरनेशनल, तो मुझे कुछ नहीं पता था और मैं कुछ एनालाइज नहीं कर पाया. तो मैंने एक क्विक डिसीजन लिया टू स्टार्ट विद दैट, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन टेकिंग डिसीजन वेरी लेट. मतलब मुझे क्विक एक्शन बहुत पसंद है हमेशा से. मैं ज्यादा सोचता नहीं, आई टेक क्विक एक्शन. तो मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद जब मुझे इंडियन कंपनी के बारे में पता लगा, बिज गुरुकुल लॉन्च हुई है, उसके बारे में पता लगा, देन मैंने कंपैरिजन किया. एंड जो भी चीज मैंने अभी आपको कुछ टाइम देर पहले बताई थी, 3 पैरामीटर्स, वो मुझे बिज गुरुकुल के ज्यादा प्रीफरेबल लगे. एंड देन मैंने स्विच किया और बिज गुरुकुल को कंटिन्यू रखा. ओके, फाइन. सो जो आपने अर्न किया फ्रॉम बिज गुरुकुल, उससे आपने किसी को गिफ्ट वगैरह भी किया कुछ? या ऑफ कोर्स, बिकॉज बहुत like it's a wish for any student or any young personality कि जब वो अपनी फर्स्ट अर्निंग करता है, तो he or she should always give like to near or dear ones, right? तो मैंने अपने फादर को गिफ्ट किया था, इट वाज अ स्मार्टफोन. एंड मैंने मम्मा को भी कुछ गिफ्ट किया था. ओके. तो ये 2 गिफ्ट मैंने दिए थे. सो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट. या Okay, good, yeah, very good. So, what according to you think कि जैसे आपने एफिलिएट मार्केटिंग इतने टाइम से आप कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, आपने जून में ज्वाइन किया था, अभी तक आप कंटिन्यू कर रहे हो. सो व्हाट डू यू थिंक दैट 2 to 3 थिंग्स जिसकी वजह से आपको लगता है आपने इतना टाइम तक कंसिस्टेंसी मेंटेन किया? Okay, it was a nice question. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज को कंटिन्यू करने के लिए या फिर करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, देयर इज ओनली one थिंग, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग व्हाई. मेरा हमेशा से यही मानना है, दैट इज स्ट्रॉन्ग व्हाई. आप किसी चीज को क्यों करना चाहते हो, राइट? क्या रीजन है आपका? करेक्ट. तो दैट इज द ओनली वन थिंग जिसकी वजह से मैंने इसको किया. बिकॉज मुझे अभी से मेरा आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर या फिर आफ्टर 20 ईयर क्या गोल होना चाहिए, वो मेरे माइंड में सेट है कि मुझे क्या बनना है लाइफ में, इन एनी हाउ. तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे अभी से क्या करना है वो भी पता है. तो जो भी मैं अभी कर रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने स्टार्ट की, फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की कॉलेज के साथ साथ, बीटेक कर रहा हूँ, दैट इज गुड. बट उसके साथ जो मुझे टाइम मिल रहा है और जो मैं करना चाहता हूँ वो करने का मौका मिल रहा है, देन इट इज नॉट बैड फॉर एनीवन. लाइक किसी के लिए वो एक बेकार चीज नहीं है. तो उन चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी हुई जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ. तो उसमें मेरा वाई क्लियर था. तो उसी वाई को मुझे दिखा इन चीजों में और मैंने इस चीज को कंटिन्यू करी. और कंटिन्यू रखने का रीजन ये है कि एवरीवन शुड हैव डेडिकेशन, पेशेंस एंड परसिवरेंस.
ओनली 3 थिंग. तो ये 4 चीजों का जब कॉम्बिनेशन होगा, हाँ. एनीवन वुड बी सक्सेस इन एनीथिंग. So that's very nice answer. That your why should be clear. आपका why clear होना चाहिए. Because most of the people have motivation जब वो start करते हैं, but वही है कि consistency maintain नहीं कर पाते because motivation doesn't work in a long term. Long run. Yeah. Yeah. Great. So you have done affiliate marketing, network marketing career. So what is the skill you developed from these types of side hustle? Yeah. So basically, in any business, the most important skill a person should have is network, right? Okay. उसका network कितना strong है. And there is one saying that network is the only net worth, right? अब मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि लाइक कुछ कॉलेज स्टूडेंट सोचते हैं कि लिंक्डइन पे फ्रेंड्स होना, लाइक फॉलोअर्स होना, और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होना, लिंक्डइन पे कनेक्शन होना, इफ आई वुड से इन गुड वर्ड, राइट, कनेक्शन होना इज ओनली द नेटवर्क. बट नो, दैट्स रॉन्ग. बिकॉज नेटवर्क आपका तब होगा किसी पर्सन के साथ जब आपने कुछ एक्सचेंज किया होगा, राइट, कुछ नॉलेज एक्सचेंज किया होगा, या फिर जब आपने कुछ प्रोजेक्ट किया होगा तो उसके साथ वर्क किया होगा. ओके, मेरा किसी को फॉलो करना, किसी को मेरा फॉलो करना इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे इज नॉट नेटवर्क. यस, करेक्ट. तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की और जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की तो मैंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल के साथ बातें की ऑन कॉल, राइट, जेन्युइन कॉल पे बातें की. अभी मेरे फोन में लगभग 3000 कॉन्टेक्ट्स हैं, राइट, जो कि मेरे फैमिली को हटा के हैं. लाइक कोई पर्सन केरला में बैठा हुआ है, कोई हरियाणा में बैठा हुआ है, कोई गुजरात में बैठा हुआ है, और मैंने उन लोगों से अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट बात की है ड्यू टू माई बिजनेस, राइट, उन्हें अपना बिजनेस बताने के लिए, फिर उनका जानने के लिए. तो वहां पे पर्टिकुलरली एक कनेक्शन बना. ओके, इट्स ओके कि उसने मेरे साथ स्टार्ट नहीं किया बिजनेस, या फिर मैंने सामने वाले के साथ स्टार्ट नहीं किया, बट वी एंड आर टॉक ऑन अ पॉजिटिव नोट. ओके, एंड वी बिल्ड अ रिलेशन. तो सबसे पहली चीज जो डेवलप हुई है वो है नेटवर्किंग जिसे हम बोल सकते हैं. करेक्ट. सेकेंड थिंग इज बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, जो कि नेटवर्क का एक पार्ट है. ओके, रिलेशनशिप बिल्डिंग. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट वन इज communication skills, right? Great. I know that how to talk with someone in a professional way, whether it is a sales call or whether it is a genuine introduction, right? अगर मैं किसी अनजान पर्सन को मिलता हूँ in a conference, then I know how to start a talk with her or him. Okay, so these are the particular skills जो कि किसी पर्सन को लगता है कि हम ग्रेजुएशन में सीखते हैं, कॉलेज के टाइम में सीखते हैं. But if we do a side hustle like network marketing or affiliate marketing or any sort of work, I'm not only promoting these two industries, any sort of work, so there हम वहाँ पे इसको implement करेंगे. So these all three are the skills जो कि मैंने ज़्यादा सीखी हैं, and there are many more things also. Okay. Good. So I have seen you improving, bro, day by day, growing your communication skills. Thank you. Yeah. So, according to you, what can be the different sources of income other than affiliate marketing at this point of time? Okay, so abhi like from last 1 year when I entered in this industry, तो मुझे अपने लाइक प्रोस्पेक्ट के थ्रू बहुत सारे करियर पता लगते थे, बिकॉज वो मेरा बिजनेस जानने के लिए मुझसे बात करते थे एंड वो अपने बारे में बताते थे, तो मुझे उनके बारे में पता लगता था कि व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग. सो देयर आर so many career options that a person can do in his or her college just as a part time. Yeah. And he or she can earn a good money, approx 30,000 minimum, 30,000 per month consistently. So like there are option like stock market is there, day trading is there, like one is long term investment in stock market, and one is intraday trading, so that would be a good thing. After that there are so many careers like graphic designing,
Yes. social media marketing, Yes. like social media handling, in good word, like we have to manage our social media pages of a company. That would be a big company or small company, कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता. Okay. हाँ. And there are careers like related to video making. Yes. Okay. Yes. There are so many pages on Instagram जिन्हें की video makers की जरूरत है. Yes. Yes. Okay. Those people जिनको कैमरा से fear नहीं होता. And this is also one skill that I have developed in Biz Gurukul. Okay. And now I don't have any fear in making a videos. Yeah. Whether it is a personal video of like vlogging or some It's like it's a podcast. podcast, yeah, creative video, like sorry, not creative, some business related videos or Okay. providing a good content Yeah. on social media handles. Okay. So these are the like careers a person can go for in side hustle or a side Yeah. hustle. Yeah. So I have also done affiliate marketing and network marketing. ठीक है. So मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब आप ये सब चीजें कर रहे हो तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग में इतने अच्छे नहीं होते हो. ठीक है. So there are Right. lot of no's, मतलब इतने no's आते हैं हर दिन. ठीक है. और इतनी गालियां सुनने को मिलती हैं फ्रॉम द अदर साइड की यू आर जस्ट वेस्टिंग माय टाइम, और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें इससे क्या मिलेगा, ऑल दीज स्टफ जो कि आपको नेगेटिव करने की कोशिश करती है. Definitely. या सो आई थिंक अगर आप इतना टाइम तक सरवाइव कर रहे हो तो आपने बहुत सारे नो सुने होंगे. Definitely. या सो हाउ यू पुट दैट कि यार मेरे को इसका नहीं सुनना, आई हैव टू डू माय वर्क, ये नहीं तो नेक्स्ट. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं थोड़ा लॉजिकली भी सोचता हूँ और टेक्निकली भी सोचता हूँ. टेक्निकली लाइक ये सोचता हूँ कि आई नो आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ सेल्स, राइट. आई एम डूइंग प्रॉपरली, आई एम डूइंग सेलिंग. ओके. फर्स्ट स्टेप ऑफ माय वर्क इज मार्केटिंग. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दैट इज गोइंग गुड. उसमें कोई मुझे नो या यस नहीं बोलेगा बिकॉज दैट इज अ वर्क आई हैव टू डू प्रमोट on my social media of doing marketing, of doing something. Yeah. Second जो वर्क आता है वो होता है सेलिंग का, सेलिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट. बिकॉज सॉरी, उस प्रोडक्ट को मार्केट करने के बाद जब मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, लीड्स आ रही हैं, तो बेचना भी मुझे ही है. ओके. तो सेलिंग के जितने बेसिक प्रिंसिपल है वो मेरे माइंड में रहते हैं. एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रिंसिपल जो कि सेलिंग में अप्लाई होता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज लॉ ऑफ एवरेज, राइट. तो लॉ ऑफ एवरेज एक इतनी बेसिक चीज है सेलिंग की जो कि मुझे पता है, राइट. और अब मुझे पता है कि जब मुझे लॉ ऑफ एवरेज पता लग गया तो बेसिकली इट इज अ बेसिक दैट अगर किसी 100 पीपल्स को आप अप्रोच करते हो फॉर टेलिंग अ प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो देयर इज ओनली अ चांसेस ऑफ 2% एज अ बिगनर, जो कि वेरी कर सकता है किसी पर्सन के लिए 3%, 5%, 10%, 15%. बट एज अ बिगनर 2% लोग होंगे जो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, राइट. Yes. तो उस थ्योरी को मुझे पता है. जब मैं 100 लोगों के पास पहुंचा, मेरे माइंड में पहले से ही मुझे पता था कि 98 लोग तो मेरे वैसे ही वेस्ट जाने वाले हैं, राइट. तो मुझे एक्चुअली उन 2 लोगों की तलाश थी जो मुझे किन्हीं 100 लोगों में से मिलेंगे. ओके. तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होगा. Yes. मैं ऐसे 10,000 लोगों से बात करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि जब आप 10,000 का 2% निकालोगे देन दैट इज वेरी बिग थिंग, राइट. यस और उसका आपको रिटर्न भी मिलेगा, जो कमीशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कमीशन. यस यस. तो उस चीज को मैं याद रखता था. और दूसरा लॉजिकली ये है कि वाई, सिंपल उसी पॉइंट पे बात आ जाती है, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग वाई, राइट. अगर मेरा वाई है कि आई हैव टू अर्न 30,000, राइट, और पर पर्सन से कोई एक पर्सन अगर मेरे साथ स्टार्ट करता है बिजनेस को तो मुझे 2,000 अर्निंग होगी, राइट. तो मैं नहीं रुकूंगा जब तक मेरी 30,000 अर्निंग नहीं होगी पर मंथ की. इट इज एग्जाम्पल, ठीक है. मैं नहीं रुकूंगा उतने लोगों से बात करने के लिए जब तक मेरी 30,000 अर्निंग नहीं होगी, भले ही मेरे को 2,000 लोग मना क्यों ना करते. Yes. So this is the reason.
या मैंने भी यार एक कोट पढ़ा था कि व्हेन यू आर नॉट गुड इन नेगोशिएटिंग, सेल्स इज आल्सो इन टर्म्स लाइक नेगोशिएशन। या डेफिनेटली। या अगर आप अच्छे नहीं हो नेगोशिएशन में, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर नंबर्स, एज यू सेड कि लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज। यस सो सेल्स इज ऑल अबाउट नंबर्स गेम, ऑल अबाउट numbers. बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल्स एंड सेल्स इज ऑल अबाउट नंबर। yes good. So कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी सेल्स में नंबर पे ही टिकी है। yes, that's the point. So during your BTech you did some side hustles. So क्या उन साइड हसल से आपका बीटेक लाइफ में कुछ डिफरेंस आया या कुछ इफेक्ट्स आए, प्रॉब्लम्स? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, क्योंकि हर बिगनर्स के लिए ये क्वेश्चन होता है वो डाउटफुल। तो इसका आंसर होगा डेफिनेटली नो, बिकॉज तो थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूँ। ओके, डेफिनेटली नो नहीं बोलूंगा मैं, इसे नो या यस बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक नहीं बीएससी कर रहे हो, देयर इज अ पर्सन जो कि बीएससी कर रहा है, ठीक है, और उसे पता है कि मेरे कॉलेज में लाइक अटेंडेंस का कोई लोचा नहीं है। ओके, मिनिमम इतनी अटेंडेंस चाहिए होती है जो कि मैं इतने टाइम में कर लूंगा, और मेरा कॉलेज फॉर एग्जांपल 4 o'clock फिनिश हो जाता है। ओके, एवरी डे 4 o'clock फिनिश हो जाता है, और वीकेंड्स पे क्राइटेरिया थोड़ा अलग रह सकता है। तो अब वो जो सिर्फ 4 से लेकर सुबह के कॉलेज स्टार्ट होने तक उसके पास बहुत सारा टाइम है, राइट, बहुत सारा टाइम है, और उस टाइम में वो अपना बीएससी का 1 घंटे मैक्सिमम पढ़ सकता है, राइट। वी ऑल नो दैट कॉलेज इज नॉट लाइक स्कूल। ओके, स्कूल की तरह नहीं होता कि हमें ट्यूशन भी जाना है, राइट, स्कूल के बाद। तो कॉलेज में बहुत कम लोगों के साथ होता होगा, राइट, जो कि एमबीबीएस वगैरह करते हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा हायर लेवल की स्टडीज करते हैं, उनके साथ होता हो माइट बी, बट नॉर्मल डिग्रीज में ये नहीं होता। हम यूजली टाइम अपना स्पेंड करते हैं जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर। तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हो साइड हसल में, तो डेफिनेटली आपका आंसर नो होगा फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, राइट। बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा बर्डन है कॉलेज का, ओके, और आपके पास सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है मुश्किल से, तो उस पर्सन के लिए इस क्वेश्चन का आंसर यस हो सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लाइक रिकमेंड करूंगा कि जिसके पास 2 आवर्स और 2 से ज्यादा आवर्स हैं, तो कोई वो इस टाइप का वर्क कर सकता है, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो मेकिंग। He or she can do that work, right? Yes. So my next question is कि why do we call it as a passive source of income? Because मेरे को क्या लगता है कि we call it as a passive source of income. Are you asking for affiliate marketing or network marketing? Anything. People like using network marketing or affiliate marketing. They just simply they just simply promote कि this is a passive source of income. लेकिन passive source of income is that source of income when you are sleeping, something is earning for you. Yeah, definitely. This is only the right definition. Yeah. So rather than saying कि ये एक passive source of income है, we should say that this is another source of income or side hustle. Yeah. So because you might be knowing, आपको पता है कि it needs a lot of work. Yeah, definitely. Yeah. So, but why most of the people promote it like it is a passive source of income? So actually, when a person like एक मेंटालिटी बन जाती है मार्केट में कि अगर हम किसी चीज को लाइक एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम प्रमोट करेंगे तो सामने वाला थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा, राइट। तो मुझे लगता है कि ड्यू टू दिस रीजन ओनली मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट प्रमोट लाइक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम और लाइक क्विक रिच मनी स्कीम। ओके, बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि द बिजनेस which like network marketing or like affiliate marketing is a pure business. Okay, किसी ट्रेडिशनल बिजनेस को जितना टाइम लगता है ग्रो होने में उतना ही यहाँ पर लगता है, बट हाँ इसका जो like what we say in right term जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ओके, और
जो रिसोर्सेज चाहिए वो बहुत कम चाहिए. ओके, किसी ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि 2000 या 3000 में तो नहीं होगा. Yes, yes, ओके, yes. Correct. 2000 या 3000 में नहीं होगा. बट एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, दिस टाइप ऑफ बिजनेस आर और कैन बी स्टार्ट इन जस्ट 1000 rupees also. Yes. ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ अ कंपनी. Mm-hmm. तो रिसोर्सेज बहुत कम चाहिए. ओके, और हमें ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इसलिए लोग क्या बोलते हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं कॉलेज Yeah. स्टूडेंट. सो जो लोग इसे प्रमोट करते हैं लाइक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, वो नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज दिस इज द लाइक बिजनेस ऑफ लाइक ट्रेडिशनल. जैसे ट्रेडिशनल कोई बिजनेस होता है उसी तरह ये बिजनेस है. ओके, Mhm. और कोई ट्रेडिशनल बिजनेस जब पैसिव इनकम सोर्स के लेवल तक पहुंचता है, Yes. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ और वो इस लेवल तक पहुंच चुका है कि मैं अगर घर पे सो रहा हूँ या फिर मैं कोई वेकेशन ले रखा है मैंने 1 वीक का, फिर भी वो बिजनेस वर्क कर रहा है हाँ. और इनकम आ रही है, तो डेट इज अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव सोर्स. तो वो इनिशियल लेवल पे कभी नहीं होता एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में. Okay, Right? okay, okay, fine. तो जो भी पर्सन उसे प्रमोट कर रहा है उसे एक राइट नॉलेज देनी चाहिए सामने वाले पर्सन को कि ये हाँ. पैसिव किस लेवल पे जाके पहुंचेगा, क्योंकि सामने लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, यार ये तो पहले दिन से ही पैसिव सोर्स ऑफ इनकम वाला वर्क है, हाँ. मतलब मैं काम ही नहीं करूंगा 1 हफ्ते बाद भी तो पैसा आ जाएगा. करेक्ट. तो ऐसा लोगों को एक्साइट करता है, क्योंकि रॉन्ग इंफॉर्मेशन के थ्रू लोग इसमें आते हैं और जानते हैं इस चीज को. So yes, this is truth कि एक लेवल पे जाने के बाद पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनता है. That is a good answer to this question, I think. So you have gained financial success in this affiliate marketing. मतलब during your BTech आपने 1,50,000 earn किया है. So you have gained some financial success for sure. ठीक है. Yeah. So do you feel कि जितना टाइम आप इस पे काम किए हो, it has improved your personality? Yeah, sure, definitely. Hmm. It's definitely improve my personality because जब मैं कॉलेज में एंटर किया था और जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था 11th और 12th, आई वाज सो इंट्रोवर्ट. राइट, मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था और अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था किसी के साथ भी, विद माय फ्रेंड्स ओनली. बट आज ऐसा टाइम है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, राइट, और एक पर्सन ऐसा आ रखा है जिसकी नेटवर्थ इन करोड़ है, तो Yes. मेरे पास इतने गट्स आ चुके हैं कि आई कैन टॉक विद दैट पर्सन. Yes. राइट, आई कैन टॉक विद दैट पर्सन. That's great. इतना ज्यादा मेरे पास लाइक कॉन्फिडेंस आ चुका है, बिकॉज अगर मैं किसी एक ऐसे पर्सन के साथ बात करूंगा, ओके, जिसका लाइक जो करोड़ों में अर्निंग कर रहा है या फिर जिसकी नेटवर्थ करोड़ों में है, तो उसके साथ उस फ्रीक्वेंसी की बात होगी. फ्रीक्वेंसी इन द सेंस बात जो होगी वो बिजनेस से रिलेटेड होगी. ओके, Yes. किसी आइडिया से रिलेटेड होगी. Yes. मैं कोई टाइम पास वाली बात नहीं करने जाऊंगा उस पर्सन से. ओके, और जब उस बिजनेस की बात होगी, उस आइडिया की बात होगी, तो डेफिनेटली मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस होगा. राइट, Correct. मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस होगा. Yes, तो yes. एक फ्रीक्वेंसी मैच होगी, और वो Yes. तभी होगा जब आपने कोई वर्क कर रखा होगा, इतना ज्यादा आपने हार्ड वर्क कर रखा होगा उस चीज के लिए. इंडस्ट्रीज अलग हो सकती हैं, लाइक थोड़ा वर्क अलग हो सकता है, पर कुछ काम होना चाहिए. ओके, ये Yes. नहीं कि आपने लाइक 4 साल कॉलेज में वेस्ट कर दिए और आप कॉलेज के बाद एक कोई पर्सन मिल रहा है जो बहुत ज्यादा अर्निंग करता है और आप उससे चाहो कि बात कर लो फ्री फंड की, आप उसे जानते ना हो, तो बहुत मुश्किल होगा और आप कभी ट्राई भी नहीं करोगे. ठीक है, कोई भी पर्सन ट्राई भी नहीं करेगा Yes. उस पर्सन को रीच आउट करने का, बिकॉज उसके पास कोई मोटो नहीं है, कोई वाया नहीं है, वो क्यों करना चाहेगा. Yes. Yes. तो Correct. इतना कॉन्फिडेंस मेरे पास आ चुका है, और जो कि पहले नहीं था, बिकॉज आई वॉज जस्ट डूइंग टाइम बेस्ड, Thanks. अगर मैं एक लैंग्वेज में बोलूँ तो. Yes. 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 So man, I have seen. हुई है, दैट वुड बी द लाइक मेरे लिए बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है. Okay. Yes. अगर हम Yes. अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इट वुड बी अ गुड पर्सनैलिटी. Yes. 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 So man, I have seen you working because हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे. We became friends because of work. Working Yeah, together. that's it.
Yeah. So हमारा we फर्स्ट कांटेक्ट ही ऐसे हुआ था yes ड्यू yes टू yes we have नेटवर्क मार्केटिंग. we have contacted because we have worked together and I feel कि you are one of those people जिनके साथ मैंने काम किया, so my energy has increased to work. थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन. Okay, so this and seeing watching you like working like hell and improving this much in terms of financial success, in terms of personality, in terms of your communication skills, so it makes me feel good and makes me eager and curious enough to bring you to the podcast and make people watch your story, your journey. So Thanks a lot for providing this opportunity. it was a great experience talking to you and I hope जब लोग देखेंगे they will get to know that this is possible, that कि आप कुछ भी कर रहे हो in any of your course और अगर आपके पास time available है, so you can do some side hustle and you can gain some financial knowledge, financial success, personality, and improve your communication skills as well as your overall your personality. So I'm happy enough you came to the podcast and shared your experience. So this was a great feeling. Thank you for coming थैंक to यू the सो मच podcast, man. फॉर इनवाइटिंग मी. और मैं आपको बहुत लाइक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फॉर दिस इनिशिएटिव कि आप लोगों को लेके आ रहे हो और उनका पॉडकास्ट कर रहे हो और उनके एक्सपीरियंस बाकी व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हो, बिकॉज दैट इज द नाइस थिंग, Yeah, yeah. राइट. आई नो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो करते हैं ये चीज, बट हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है डिलीवर करने का, और Yeah, जो yeah. उसमें पर्सन बैठा है उसके पास एक्सपीरियंस अलग होता है. Yes, तो अगर yes. एक पर्सन को बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं देन इट इज अ गुड थिंग. Yes, yes, Right. yes. सो कीप गोइंग, कीप डूइंग, कीप हसलिंग. Yeah, yeah, yeah. So I thought of like bringing unscripted things to the people, so उन लोगों को पता चले कि there are some raw material available at this YouTube channel. डेफिनेटली डेफिनेटली. Okay, so bye and जो आपका experience आगे होगा in your future, we will again feature you in this YouTube channel at this podcast. So we will get to know more about you. Okay. डेफिनेटली डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. Okay. Okay. Bye. Good night. Right. Good night.